Good morning, students. Welcome in our geography class. So we are going to continue chapter first, human geography, nature and scope. Our last topic of this chapter is development of human geography. Students, as you know that the development of human geography is start processing when the human arriving on earth. जब ह्यूमन का अराइवल हुआ था अर्थ पे, तभी से ह्यूमन डेवलपमेंट की भी शुरुआत हो गई थी. एंड द development and the roots of development is very deep. Here the development of human geography categorized into three categories: ancient period, modern period and medieval period. These are the three classification of development of human geography. Let me start with the ancient period. At the ancient time, the interaction between different societies वर वेरी फ्यू. क्यों? क्योंकि ह्यूमन जो था वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं था अदर ह्यूमन बीइंग से या अदर कंट्री से या अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड से. ह्यूमन बीइंग को एंशिएंट टाइम में पता ही नहीं था कि ये पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा संसार है, वो किस तरीके का है. अर्थ गोल है या चपटी है. जैसा कि आपने अर्लियर पढ़ा होगा कि ह्यूमन जो था उसकी नॉलेज about the earth, about the universe, about the celestial bodies are very few. बहुत कम नॉलेज थी ह्यूमन को, उसको कुछ नहीं मालूम था. अर्लियर ह्यूमन तो पूरे अर्थ को एक तश्तरी नुमा मानता था और 2 चंद्रमा 2 सूर्य होने की बात करता था. लेकिन when the human start gaining the knowledge, he knows various things. So in the ancient time, first of all, human start developing the civilization, and these civilization majorly starts in some part of the world like China, Egypt, India, Greek and Rome. And these civilized people believed in the natural powers and its effect. So they very much they are worshipper of these natural powers. Even in Vedas, everything is mentioned. According to the Vedas, sun, air, fire, water, rain, these etc., these are the natural powers which worshipped by the ancient human. According to the Greek philosopher Thales and Anaximander, they described climate, plants and human societies according to their knowledge. Aristotle told that the people of cold region were brave but bit weak in thinking. ह्यूमन ने क्या किया? अपनी अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग स्टार्ट किया. इसमें सबसे बड़ा श्रेय जाता है जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे, थियल्स एंड एनेक्सिमेंडर को. इवन अरस्तु जो थे, उन्होंने कहा था अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, ही सेड ठंडे इलाके में रहने वाले जो लोग होते हैं वो काफ़ी ब्रेव होते हैं, लेकिन उनकी जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है वो काफ़ी वीक होती है. वाइल द पीपल ऑफ एशिया वर डल बट कंटेम्पलेटिव. हिस्टोरियन लाइक हेरोडोटस डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट. हेरोडोटस ने इफेक्ट बताया था एनवायरनमेंट का नोमेडिक जो रेसेस थे उनके ऊपर. हिकेटियस, इन्होंने जोग्राफिकल नॉलेज देनी शुरू की वर्ल्ड पर. So that's why he is known as the father of geography. Now let me start with medieval period. समय बदला, समय आगे बढ़ा और ये समय कहलाया medieval period, यानी कि मध्ययुगीन समय, मध्यकालीन समय. During this period, mystery and secrets started to open. अब medieval period आने तक mysteries जो थी regarding sun, regarding earth, regarding universe, they started डिस्कवरीज होनी शुरू हो गई थी क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे थे. नोमोन जैसा आविष्कार किया जा चुका था. नोमोन एक यंत्र था जिसकी मदद से सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ज्ञात कर ली गई थी. तो इन द मिडीवल पीरियड, the period is called the developmental period.
when the discoveries and the proficiency of technology start developing. Even the colonization and trade interest brought broad knowledge of the world. मिडीवल पीरियड आते आते ह्यूमन जो था वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रैवल करने लगा था, और बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग, ट्रैवल का रीज़न था उसका ट्रेडिंग, क्योंकि अब यहाँ पर ह्यूमन जो था अपनी नेसेसिटी को फुलफ़िल करने के अलावा और एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहा था, और इसके अलावा उसको क्यूरियोसिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। उसको जानना था कि उसके जैसे और ह्यूमन बींग हैं क्या, और कितना बड़ा है ये अर्थ, कैसा है, किस तरीके का है, वाटर क्या है, कैसे दिन और रात होते हैं, सब चीज़ें उसको जाननी थी। सो ये स्टार्ट गेटिंग द नेविगेशंस डिस्कवरी, नेविगेशन डिस्कवरी की, पता लगाया रास्तों का, और विद द हेल्प ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर रूट, he start exploring the new world, the new places. So during this period, emphasis were given on invention and regional analysis. All the sectors of reasons were broadly described in regional analysis. So it was believed that all the regions are perfect unit and parts of the earth. ये जो पीरियड था काफ़ी डेवलपमेंटल पीरियड माना गया। फिर आता है समय मॉडर्न पीरियड का। दिस पीरियड बिगिन विद इंट्रोडक्शन ऑफ जर्मन जोग्राफर्स। मॉडर्न पीरियड वो समय था जब जर्मन जोग्राफर्स इंट्रोड्यूस हुए थे वर्ल्ड के सामने, एंड द फेमस जर्मन जोग्राफर्स आर हम्बोल्ट, रिटर, फ्रोबेल, पैसेल, रिश्तहोफेन, एंड मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन जोग्राफी टुक प्लेस इन फ्रांस। इस समय में, मॉडर्न समय में, जो ह्यूमन डेवलपमेंट था, ह्यूमन जोग्राफी का जो डेवलपमेंट था, ज़्यादातर फ्रांस में हुआ और ज़्यादातर जर्मन जोग्राफर्स के द्वारा हुआ। रेडजेल, विडाल डी ला ब्लाश, ब्रून्स, डी मार्टिन, डिमांजिया, फ्रोबेल, दे रॉट मैनी बुक्स ऑन ह्यूमन जोग्राफी। ये वो जोग्राफर्स थे जिन्होंने ह्यूमन जोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारी किताबें लिखी। ह्यूमन जोग्राफी हैज़ डेवलप्ड रैपिडली इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ग्रेट ब्रिटेन, and the geographers like Alan Semple, Huntington, Bowman, Carlos Sauer, Griffith Taylor in America, and Herbertson, Mackinder, Rocks and Floyer in Britain contributed more in the development of human geography. ये वो सभी जोग्राफर्स हैं जो अपने अपने तरीके से, अपने अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट कर रहे थे और ज़्यादा एलेबरेट कर रहे थे ह्यूमन जोग्राफी को। सो इन द 20th century ह्यूमन जोग्राफी डेवलप्ड इन एवरी कंट्री। 20th सेंचुरी आते आते ह्यूमन जोग्राफी हर कंट्री में डेवलप हो चुकी थी। फ्रेडरिक रेडजेल, हु इज़ कॉल्ड फाउंडर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन जोग्राफी, इन्हें फ्रेडरिक रेडजेल, जो कि फाउंडर माने जाते हैं मॉडर्न ह्यूमन जोग्राफी के, इन्होंने ह्यूमन सोसाइटी का और रिलेशनशिप जो था अर्थ सरफेस का, इसके बारे में जानकारी देनी शुरू की। इनकी डिस्पल एलन चर्चिल सैम्पल, जो कि अमेरिका से थी, इन्होंने और भी ज़्यादा इनकी नॉलेज को आगे बढ़ाया, और ये वो समय था जब नियो डिटर्मिनिज़म की शुरुआत हुई। नियो डिटर्मिनिज़म जब ह्यूमन और नेचर दोनों को एक दूसरे के लिए, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी माना गया, बीच का रास्ता जिसे कहते हैं, वो ढूंढ लिया गया था। सो द लाइन ऑफ थिंकिंग इज़ नोन एज स्टॉप एंड गो। इनकी नियो डिटर्मिनिज्म थ्योरी को स्टॉप एंड गो थ्योरी भी कहा जाता है, जो कि स्टार्ट किया गया था ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। 1930 का समय, ह्यूमन जोग्राफी वॉज डिवाइडेड इनटू कल्चरल एंड इकोनॉमिक जोग्राफी। अब क्योंकि ह्यूमन जोग्राफी बहुत ज़्यादा तरीके से, बहुत ब्रॉड तरीके से डेवलप हो चुका था, तो ह्यूमन जोग्राफी में काफ़ी सब ब्रांचेस भी ऐड हो रही थी। 1930 में ह्यूमन जोग्राफी जो था वो कल्चरल जोग्राफी और इकोनॉमिक जोग्राफी में डिवाइड हो गया था, एंड ड्यू टू इंक्रीजिंग specialization human geography was divided in many subdivision like political geography, social geography, medical geography। जैसे जैसे ह्यूमन डेवलप होता गया उसने जोग्राफी को भी डेवलप किया, जोग्राफी रिलेटेड सब ब्रांचेस डेवलप किए, तो जिसमें ह्यूमन का इंटरेक्शन हुआ वही उसकी एक सब ब्रांच बन गई। Between the period of 2 world wars, special attention was given to the study of areal differentiation also. As you know that the 2 world war fought between first 1914 to 1918
एंड देन सेकेंड 1939 टू 1945। इसके बीच में एरियल डिफ्रेंशिएशन के बारे में भी बहुत सारी जानकारी हासिल की गई, क्योंकि ये जो युद्ध था वो काफ़ी टेक्नोलॉजिकल युद्ध था। इसमें लैंड, वाटर और एयर तीनों तरफ से युद्ध लड़ा गया था। In the 2 decades after World War, scope of human geography was to understand patterns of different human activities by spatial organization। जब दोनों वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुए उसके बाद 2 डिकेड्स तक, अगले 20 सालों तक पैटर्न्स को समझा गया, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस को समझा गया। और 1970 के बाद में ह्यूमन वेलफेयर अप्रोच, जो कि सोशल वेलफेयर पर आधारित था, उसको भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया। इट मीन्स सोशल वेलफेयर अप्रोच यानी कि पीपल के वेलफेयर के लिए जो जो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे उसका हेल्थ, एजुकेशन, हैबिटेट, इन सब को भी इसमें शामिल किया गया। एंड अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म, एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज अ मैन डज नॉट थिंक ओनली फॉर हिज इकोनॉमिक प्रॉफिट बट हिज मेनी डिसीजन आर बेस्ड ऑन रियलिस्टिक एनवायरनमेंट रैदर देन मेंटल मैप। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन जो था अब उस स्टेज में आ गया था जब उसे इकोनॉमिक प्रॉफिट ही सब कुछ नहीं लगता था। अब उसे अपना मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी था, उसे हेल्दियर होना था, एक बहुत अच्छी वाली लाइफ जीनी थी। ऐसे चेंजेस आ गए थे। सो चेंज इन थॉट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू पार्शियल चेंज इन द स्टैंडर्ड ऑफ एनालिटिकल चेंजेस। ये चेंजेस कब आए थे? ये पार्शियल चेंजेस थे जो कि ह्यूमन के बिहेवियर के चेंजेस के साथ आए थे। So in the 21st century in human geography, the usefulness of general body theory or globalizing theory that explains the human conditions are being questioned. So thus human geography has been always dynamic with development. Human geography हमेशा डायनेमिक रही डेवलपमेंट की वजह से। इसका इम्पोर्टेंस, नेचर, स्टडी, रिलेशंस, ये सब इंक्रीज़ हुआ समय के साथ। And today the study of this important branch of geography is done in the whole world। और आज स्थिति ये है कि पूरे विश्व में ह्यूमन ज्योग्राफी के बहुत सारे ब्रांचेस हमारे सामने आए हैं, जिससे ह्यूमन ज्योग्राफी को एक नया ही रूप मिला है। इससे क्लियर होता है कि आज ह्यूमन ज्योग्राफी जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है, क्योंकि ह्यूमन का हमेशा से अर्थ पर काफ़ी महत्व रहा है, उसकी काफ़ी पहुंच रही है। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।